ہم دونوں ہرن کر دینے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغل خوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے رسول اللہ اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا، میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو صالح بولا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اس سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ آج سمندر پاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں، اسی لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت شدید گرمی سے چہرے تپ رہے تھے، ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا، لوگ گروہوں کی شکل میں اور تنہا تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے۔ میری متلاشی نظریں اپنے کسی شناسہ کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کہیں کوئی شناسہ صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور قبل اس کے کہ میں اس کی شکل دیکھ پاتا وہ میرے قدموں میں گر کر بے بسی سے رونے لگی۔ میں نے قدرے پریشانی سے صالح کی سمت دیکھا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں لڑکی سے کہا، کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ لڑکی بھی سہم کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یہ چہرہ خوف، اندیشے اور غم کے سایوں سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ چہرے اور بالوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، پیاس کے مارے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں اور وحشت زدہ آنکھوں میں خوف و دہشت کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر گئی۔ میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو بے ساختہ چشم بددور کہا تھا،
गोरा रंग, खड़ा खड़ा नाक नक्शा, किताबी चेहरा, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और गहरे सियाह बाल। खुदा ने इस चेहरे को कुदरती हुस्न से इस तरह नवाजा था कि ज़ेब और ज़ीनत की उसे हाजत न थी। मगर आज ये चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। माजी का जमाल रोज़े हश्र के हुस्न और मलाल की तह में कहीं दफन हो चुका था। सरापा हसरत, सरापा वहशत, सरापा असियत और मुजस्सिम निदामत। ये वजूद किसी और का नहीं, मेरे चहीते बेटे जमशेद की बीवी और अपनी बड़ी बहू हुमा का था, जो हसरत यास की एक जिंदा तस्वीर बनकर मेरे सामने खड़ी थी। अब्बू जी, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। यहाँ का माहौल मुझे मार डालेगा। मैंने सारी जिंदगी कोई तकलीफ नहीं देखी, मगर लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कोई आसानी नहीं आएगी। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए। आप अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं, मुझे बचा लीजिए। ये कहते हुए हुमा हिचकियां लेकर रोने लगी। जमशेद कहाँ है? मैंने डूबे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो यहीं थे, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं, मगर ये इतनी बड़ी जगह है और इतने सारे लोग हैं, किसी को ढूंढना नामुमकिन है। उनका हाल भी बहुत बुरा है। वो मुझसे बहुत नाराज थे। उन्होंने मिलते ही मुझे थप्पड़ मारकर कहा था कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अब्बू, मैं बहुत बुरी हूं। मैं खुद भी तबाह हो गई और अपने खानदान को भी बर्बाद कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दें और मुझे बचा लें। अल्लाह का अज़ाब बहुत खौफनाक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुमा फरियाद कर रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थी। मेरे दिल में पिदरी मोहब्बत का जज्बा जोश मारने लगा। वो बहरहाल मेरी बहू थी। मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, साले उसी सपाट लहजे में बोला, ये बात तुम्हें दुनिया में सोचनी चाहिए थी हुमा बीबी। आज तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है, मगर याद है दुनिया में तुम क्या थी? तुम्हें शायद याद ना आए, मैं याद दिलाता हूँ। ये कहते हुए साले ने इशारा किया और यकलख्त एक मंजर सामने नजर आने लगा। ये जमशेद और हुमा का कमरा था। मुझे लगा मेरे इर्द गिर्द का माहौल गायब हो चुका है और मैं इसी कमरे में इन दोनों के हमरा मौजूद हूँ और बराह रास्त सब कुछ देख और सुन रहा हूँ। जमशेद, अब मैं इस मुल्क में नहीं रह सकती। अब हमें किसी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई हुमा ने अपने कटे हुए बालों को ब्रश करते हुए कहा। जमशेद बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने सुना जमशेद मैंने क्या कहा? यस, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा पूरा खानदान यहाँ है। मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम इनका घर छोड़कर मेरे साथ अलग हो चुके हो। यहाँ की बात और है, मैं हफ्ते में एक दफ़ा जाकर उनसे मिल तो लेता हूँ। दूसरा ये कि फॉरेन ट्रिप तो हम हर साल ही कर लेते हैं, फिर हमें बाहर शिफ्ट होने की क्या ज़रूरत? नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी परवरिश बाहर ही हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे माँ बाप की सोहबत का फ़ायदा उठाएं। मैं तो अपने माँ बाप की नेकी का कोई हिस्सा नहीं पा सका, लेकिन कम से कम मेरी औलाद तो नेक हो। उन्हीं की सोहबत से तो मैं अपनी औलाद को बचाना चाहती हूँ। मेरे एक बच्चे को भी अपने ददियाल की हवा लग गई तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसके साथ ही फोन की घंटी बजी। जमशेद ने फोन उठाया। जमशेद ने अच्छा कहकर रिसीवर नीचे रख दिया और हुमा को मुखातिब करके कहा, तुम्हारे पापा हमें नीचे बुला रहे हैं। फिर हुमा की बात का जवाब देते हुए बोला, तुम आखिर मेरे माँ बाप के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों हो? उन्होंने मेरी खुशी की खातिर तुम्हें बहू के तौर पर कबूल किया, हालांकि तुम्हारे अंदाज व अतवार उन्हें बिल्कुल पसंद न थे। तुम मुझे लेकर अलग हो गई, तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना।
बस बस रहने दो, हुमा तिनक कर बोली। उन्हें मेरे अंदाज व अतवार नापसंद थे, मगर तुम मेरे इश्क में दीवाने हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मजबूरन तुम्हें मुझसे शादी की इजाजत दी। तुम उनसे अलग होकर यहाँ ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, पापा के बिजनेस में शरीक हो, करोड़ों में खेलते हो। जमशेद, मुझसे शादी करके तुम सरासर फायदे में रहे हो, तुमने कोई नुकसान नहीं उठाया। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी अब्बू की याद आ जाती है कि नफा और नुकसान का फैसला आखिरत के दिन होगा। यार, ये फजूल मजहबी बातें खत्म करो, मुझे इनसे चिढ़ आती है। कोई क़यामत वगैरह नहीं आनी, लाखों बरस से दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। इफ यू आर स्मार्ट, पावरफुल एंड वेल्दी, यू आर द विनर, ऑल अदर्स आर लूजर्स एंड इडियट्स। And you know, this judgment day talk is nothing but rubbish. वैसे for your kind information, मेरे पापा ने अपने पीर साहब से ये गारंटी ले रखी है कि क़यामत में वो उन्हें बख्शवा देंगे। उनको बहुत पैसा देते हैं मेरे पापा। हाँ, जिस तरह नाजायज मुनाफाखोरी, कानून की खिलाफ वर्जी और दीगर हराम ज़राए से पैसा कमाते हैं, उसको कहीं तो पाक करना होगा। मुझे सब मालूम है, तुम्हारे पापा और चौधरी मुख्तार साहब कई बिजनेस में पार्टनर्स हैं और 2 नंबर के हथकंडों से पैसा कमाते हैं। अच्छा, इतना ही हलाल हराम का ख्याल है तो छोड़ दो पापा का बिजनेस। बिजनेस तो छोड़ दूं, मगर तुम्हें कैसे छोड़ूं? मुझे मालूम है कि इसके बाद जॉब करने से ना तुम्हारे खर्चे पूरे होंगे और ना मैं तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूंगा। तुम्हारे इश्क ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, मगर ना मैं जिस खानदान से हूं वहां हलाल और हराम ही सब कुछ है। इसीलिए इतनी मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गए, वगरना अपने भाइयों की तरह मोटरसाइकिल पे घूमते या 800 सीसी गाड़ी चलाते और किसी फ्लैट में सड़ी हुई जिंदगी गुजार कर मर जाते। जिंदगी अच्छी गुजारें या बुरी, मरना तो हमें है, पता नहीं आखिरत में हमारे साथ क्या होगा। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा, वहां भी हम ठाट से रहेंगे। मेरे पापा के पीर साहब के सामने तो तुम्हारे अल्लाह मियाँ भी कुछ नहीं बोल सकते। कलमा कुफर तो मत बको। और अल्लाह मेरा कहाँ रहा है? जब मैं अल्लाह का नहीं रहा तो वो मेरा कैसे रहेगा? ये जुमला कहते हुए जमशेद का लहजा भर आ गया और उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर हुमा उसके बहते हुए आंसुओं को नहीं देख सकी। उसका सारा ध्यान आईने की तरफ था। अब वो अपने मेकअप से फारिग हो चुकी थी, इसलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठते हुए बोली, अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें, नीचे चलो, पापा इंतजार कर रहे होंगे। सालेह ने दोबारा इशारा किया और मंजर खत्म हो गया, लेकिन साथ ही हुमा की हर उम्मीद को भी खत्म कर गया। सालेह ने उसी सफ़ाकी और कातिल लहजे में सख्ती के साथ कहा, तुमने देखा, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो जाओ हुमा बीबी, अपने पीर साहब को ढूंढो जो तुम्हें बख्शवा सकते हैं और जिनके सामने अल्लाह ताला भी। सालेह ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर हुमा के अल्फाज दोहराते वक्त उसके लहजे में जो गज़ब आ गया था, उससे मैं खुद दहल कर रह गया। हुमा भी बुरी तरह खौफज़दा हो गई। इससे पहले कि सालेह कुछ और कहता, वो रोती चीखती हुई वहां से भाग गई। इस मंजर में जमशेद को देखकर मेरी हालत फिर डामाडोल हो चुकी थी। जाहिर है कि हुमा की तरह वो भी सख्तियों भरे मैदान में परेशान हाल फिर रहा होगा। मैं सोच रहा था कि जमशेद इसी हाल में मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा। मैं इसी सोच में गलता था कि सालेह ने मेरी कमर थपथपा कर कहा, आओ चलते हैं। न जाने उस थपकी में क्या बात थी कि मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर तारी होने वाली परेशानी की कैफियत बहुत हल्की हो गई है। मैं कदरे बशाशत से उसके साथ चलने लगा।
इर्द गिर्द फिर वही परेशान और वहशत ज़दा लोगों की हलचल थी। हम कुछ ही दूर आके चले थे कि सामने से चौधरी मुख्तार साहब आते नजर आए। उन्होंने शायद मुझे देख लिया था और मेरी ही तरफ आ रहे थे। उसने उठाकर आसमान को देखा, आसमान वाले को देखा और फिर अपनी गर्दन झुका दी।